हम सबका सदन है, यहाँ गुंडागर्दी के खिलाफ नारे लगाएंगे। Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students. पैरों पे नहीं मारी, सर में मारी, उनके कपड़े फट गए। तो मेरे जैसा आदमी जो अन्याय के खिलाफ लड़के यहाँ तक आया वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है, और वही उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े। सोशल मीडिया पर मैं आपको भेज सकता हूँ, अगर आप कहें तो आपको भेज दूँ मैं। कंट्रोल किसके पास है? आगे सरकार ऐसी चलने को दे रही है। यहाँ खड़ा होने से कैसे रोका आपने? ये भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है, ये हम सबका सदन है, यहाँ गुंडागर्दी के खिलाफ नारे लगाएंगे। यहाँ को रोक दिया आपने। प्रधानमंत्री जब Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense. This is no way to treat the young people of this country. These students here, they are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. Prime Minister, I don't know what he's doing. Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. And हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस that to debate in parliament he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज वो एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by the point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education.
This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. And sir, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? sir, is march still planned today? पैरों में नहीं मारी, सर में मारी, उनके कपड़े फट गए। तो मेरे जैसा आदमी जो अन्याय के खिलाफ लड़के यहाँ तक आया हो, वो कैसे चैन से बैठ सकता है? कब से आप यहाँ बैठे हैं? मैं कल रात 11 बजे से यहाँ बैठा हूँ। कुदरत मेरा इम्तिहान ले रही है। इतनी जोरदार पूरी रात बारिश रही, लेकिन ये बारिश मेरा हौसला नहीं गिरा सकती है। मैं जहाँ बैठा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है। ये दरअसल जो इनका धरना प्रदर्शन है वो छात्रों पर चली एक लाठी है, उसका जवाब जो है वो देना चाहते हैं। साथ साथ चंद्रशेखर के हाथ में एक और तख्ती जिस पर लिखा है पेपर लीक, सबसे बड़ा देशद्रोह, गद्दारों को उम्र कैद दो। तो चंद्रशेखर अब जहां एक तरफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं वो अपना धरना दे रहे हैं संसद परिसर के अंदर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के ठीक नीचे। चंद्रशेखर जी, आप जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप यहाँ पर आके बैठे, क्या कारण? देखो, कल मैं प्रोटेस्ट में गया था और इतना बड़ा जो है जनसमूह उतरा था नौजवानों का, जिसमें लड़के लड़के सब थे। उनका फेस देख के पता लगता था, उनके बोलने के तरीके से, कि वो स्टूडेंट हैं, किसी पार्टी के वर्कर नहीं है। और वो इस उम्मीद से आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं या लाल किले से बात होती है, तो वो कहा जाता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ सुना जाता है अंतिम व्यक्ति को। लेकिन 30 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम भाई से लेके कितनी बच्चियां जो हैं, नेहा, सब लोग भूख हड़ताल बैठे, जान की बाजी लगा रहे हैं। आप संवाद नहीं कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो। जहां आप ये कहते हो हमसे कि संवाद से रास्ते निकलेंगे, नारेबाजी हंगामे से निकलेंगे, वो शांतिपूर्वक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कल आपने बात की, अगर यही बात 4 दिन पहले हो जाती तो शायद जो दाग कल दिल्ली को लगा वो नहीं लगता। इतने लोग नहीं आते घर से बाहर निकल के, अभी लोग घर नहीं पहुंचे। कितने लोग सही हैं, कितने का स्वास्थ्य अच्छा है, कितने को चोट लगी है, कितने क्रिटिकल कंडीशन है। जब मैं रात ऑफिस गया अपने, क्योंकि जैमर्स लगे हुए थे, फोन जो है यूज नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने देखे विजुअल्स कि किस तरह का अन्याय हुआ। लाठी पीटी को नौजवान किस तरह तन के खड़ा था कि मारो मारो, लाठी खा रहा था लेकिन हट नहीं रहा था। तो उससे पता लग रहा था। और पुलिस के लोग इस तरह से लाठी मार रहे थे, और पुलिस के साथ साथ कई तो बिना वर्दी के ऐसे लोग थे जिन्होंने लड़कियों को लाठियां मारी, पैरों में नहीं मारी, सर में मारी, उनके कपड़े फट गए। तो मेरे जैसा आदमी जो अन्याय के खिलाफ लड़के यहाँ तक आया हो, वो कैसे चैन से बैठ सकता है? कब से आप यहाँ बैठे हैं? मैं कल रात 11 बजे से यहाँ बैठा हूँ। कुदरत मेरा इम्तिहान ले रही है। इतनी जोरदार पूरी रात बारिश रही, लेकिन ये बारिश मेरा हौसला नहीं गिरा सकती है। मैं जहाँ बैठा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है। वो संविधान जो हमें शक्ति देता है संघर्ष करने की, उसके आर्टिकल जो हमें हिम्मत देते हैं, जो हमें अधिकार देते हैं, अवसर देते हैं, उन्हीं की वजह से, जिसके आर्टिकल 330 की वजह से मैं इस सदन का मेंबर बन पाया हूँ। क्या मांग आप कर रहे हैं? देखो, वो बच्चों की जो मांगे वही मांगे है, मेरी कोई अलग मांग नहीं है। मैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहता हूँ। पहली बार शिक्षा व्यवस्था, मैं उनके समर्थन में यहाँ बैठा हूँ, उनका प्रतिनिधि होने के नाते पहली बार शिक्षा को लेकर आंदोलन हो रहा है। कब तक आप बैठेंगे यहाँ पे? सरकार जब तक संवाद करके उनकी मांग सुन के रास्ता नहीं निकालती, इस्तीफा नहीं होता जब तक धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक मैं कह रहा हूँ इस्तीफा हो जाए, और ना भी हो इस्तीफा, लेकिन सवाल ये कि व्यक्ति बदलने से क्या पॉलिसी बदल जाएगी? शिक्षा में सुधार होना ही चाहिए, देश की डिमांड है। मुख्य मांग आपको लग रहा है कि इस्तीफे से ज्यादा उनकी हैं, जी। मैं उनके समर्थन में हूँ। मेरी मांग ये है कि इस देश की शिक्षा में सुधार होना। 94,000 स्कूल बंद हुए हैं, कहाँ जाएंगे गरीब के बच्चों? उनका भविष्य क्या है? तो रात को 11 बजे से आपने कुछ खाया है यहाँ पे? आप कुछ भोजन? मैं खा के आया था खाना, लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखी तो वो खाना भी मुझे नहीं पचा। मैं एक युवा हूँ, जागरूक युवा हूँ, वकील हूँ,
संसद का प्रतिनिधि हूँ, मुझे मेरे लोगों ने चुन के भेजा है। कल मैंने उनके साथ अन्याय देखा, मैं चुप नहीं रह सकता, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ बताने के लिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो आप देख सकते हैं चंद्रशेखर ना करें जो मीडिया अगर वीडियोस आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है सच्चाई को बाहर लाना। क्या सरकार उसमें भी शामिल है वीडियो चलवाने में? क्या अगर वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपको भेज सकता हूं, अगर आप कहें तो आपको भेज दूं मैं। तो कंट्रोल किसके पास है? अगर सरकार ऐसे चलने क्यों दे रही है? अगर सरकार की बदनामी हो रही है और सरकार की लाठी से छात्रों का, नौजवानों का, युवाओं का सर फूट रहा है, आंसू गैस गोले चल रहे हैं, आप करंट लगा रहे हो, किसने नहीं देखा, किसको नहीं समझा? और दुर्भाग्य देखिए क्या है कि कई मीडिया के लोगों को वहां खड़ा होने पर भी उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कम से कम आप लोग भी तो क्रेडिबिलिटी थोड़ा बचाओ। और जो डॉक्टर्स, जो वीडियो मैंने भी पोस्ट किया है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि सर खुले हुए आए लोगों के, बच्चों के। क्या इसीलिए सरकार बनी थी? इसलिए इनका नारा था सबका साथ सबका विकास। यही सबका साथ है और यही युवाओं के लिए संदेश है और यही विकसित भारत है, यही अमृत काल है। क्या यही विश्वगुरु बनने का रास्ता है? क्या आप छात्रों पर लाठी मारेंगे, आप नौकरी नहीं देंगे? और अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? ये सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार ने स्वीकार किया, इसीलिए तो नीट एग्जाम दोबारा किया। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। और यूपी में तो 20 पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक, और लगातार पेपर लीक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथी मंत्रियों पे कोई दबाव नहीं बना पा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस समय उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेंगे तो दबे खुचे राज भी वो मंत्री लोग खोल देंगे। अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक, उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े, और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर बॉडी में प्रहार करने से जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए, अगर मारना ही है, अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे मारे, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं। हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है, और इनके बच्चों के मोती जैसे जो आंसू हैं उस पर भी सरकार रहम नहीं कर रही है। अभी भी अपने अहंकार के तले ये लोग रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री को नहीं हटा रहे हैं। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगी, जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, जो इतने बच्चों ने किया, युवाओं ने किया, सब लोग इसमें शरीक हुए, तभी भी इस सरकार का जब दिल नहीं पगला है तो हमें इनसे कोई इस अहंकारी सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और बस मन में बिठाना चाहिए, वोट के माध्यम से इनको हमको हराना है। एक यही हमारे पास एक हथियार है जिनको हरा के इनको यहाँ से हटाने का कार्य करना है।